Unacademy. Let's crack it. विशाल ठाकुर जी, अपनी लीगल जर्नी के बारे में बोर्ड को बताइए। Good afternoon, sir. Sir, I am Vishal Thakur. Sir, I have started my LLB in 2017, and sir, thereafter, sir, I have completed my LLB in 2020, and sir, I started my LLM in 2022, and sir, I am pursuing my LLM, and sir, I am preparing for judicial service examination since my final year of my LLB. आपका एलएलएम किस सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन में है? Sir, I am pursuing my LLM in criminal law. So what are the theories of punishment? Sir, there are various theories of punishment in criminal law. So first is retributive theory, second deterrent theory, third reformative theory, fourth is expiatory theory, and fifth is yes, sir, these are the theories. In India, which theory is followed? Sir, in India, sir, we are focusing on reformatory theory, and so apart from it, sir, there is deterrent theory also. But sir, retributive theory has been redundant, which says that tooth for tooth and eye for eye. What is the difference between prohibition and certiorari? Sir, prohibition and certiorari, these are both types of writs available in Honorable Supreme Court as well as High Court. Sir, prohibition is the writ which is issued by the court to prohibit the court not to exceed its power, not to assert the power which it doesn't have. Sir, certiorari is the order of question that if the court has already exceeded its power, then the High Court or the Supreme Court may pass an order to cancel the order. It can question. What are the grounds when a writ of prohibition can be issued? So writ of prohibition can be issued when the lower court has no jurisdiction and it is trying to usurp jurisdiction. Secondly, sir, it has jurisdiction and it is not following that portion. And sir, it can be issued only in judicial scenario, and a higher court can issue writ of prohibition against the lower court. What is the evidentiary value of testimony of an accomplice? Sir, evidentiary value of accomplice is given under two provisions. The first is, sir, Section 133 of Indian Evidence Act, and the second is Section 114, illustration B. So as per Section 130, an accomplice is a competent witness, and sir, conviction can be based on the uncorroborated testimony of the accomplice. But sir, on the other hand, the illustration B of Section 114 says that no conviction can be based on the uncorroborated testimony of a witness until and unless it is corroborated. Sir, the controversy is laid down in Dagdu versus State of Maharashtra. So whereas it is laid down that the road to Section 133 is through Section 114 illustration B, and if the testimony is corroborated, then sir, we can rely on the testimony of the person, and a conviction can be based on it. Sir, there is no video continuing. Am I audible to you? Yes, sir. आपने क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट चूज किया अपनी मास्टर डिग्री में, राइट? Yes, sir.
तो कोई स्पेसिफिक वजह क्रिमिनोलॉजी आपने क्यों चूज किया? आपके पास और भी ऑप्शन थे जैसे No, sir. My specialization in criminal law, and criminology is just only a subject in it. पार्डन, प्लीज स्पीक लाउडली. Sir, my specialization in criminal law, and हम्म. criminology is only a subject in it. ये Yes, जो sir. पीछे आपकी क्रिमिनोलॉजी लॉजी वर्ड आता है LOGY, Yes, sir. क्या होता है इसका मतलब? Sir, logy means when we used to. It is a method of study, sir. Like, sir, cosmology, study of the universe. Criminology, study of the crime. Penology, study of the penal law. It basically means study and research behind a particular aspect. तो ऐसे कौन कौन से डॉक्टर्स की स्टडी जिसके नाम के पीछे लॉजी लगा हुआ है वो हमारे क्रिमिनल में काम आती है? Sorry, sir, I am unable मैं to आपको recollect. हिंट दे देता हूँ, अनसाउंड माइंड. Okay, अब बताओ. sir. Sir, if possible, sir, please repeat the question. जैसे ये लॉजी वर्ड आपने एक्सप्लेन कर दिया, इसका मतलब Yes, sir. होता है स्टडी. ठीक है. Yes, sir. तो स्टडी ऑफ साइंस के अंदर एक ऐसी ब्रांच होती है जो हमारे क्रिमिनल में काम की है. तो अनसाउंड माइंड के संबंध में बीइंग अ जज आप कौन सी वो साइंस की ब्रांच इस्तेमाल करेंगे और जिसके नाम के पीछे लॉजी आता है? Sir, right now I am only recollect the forensic science which can be imported in criminal law, and no words are अच्छा, available. जब ये आपके फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं तो इनमें काउंसलिंग कराने की कोशिश की जाती है. Yes, sir. काउंसलिंग कौन करता है? Sir, mediator, मीडिएटर या काउंसलर? counselors. क्या अंतर है मीडिएटर और काउंसलर दोनों में? Sir, mediator has no active role to play, and sir, he only helps the parties to come to a decision or way out. Where the counselor also gives advice to both the parties that how they can proceed. And sir, in comparison to mediation, he has a little active role to play. मतलब कंसिलेटर का एक्टिव रोल होता है, मीडिएटर का एक्टिव रोल नहीं होता, ये कहना चाह रहे हैं? So mediator only facilitates. सिर्फ फैसिलिटेट करता है, एक्टिव Yes, रोल sir. नहीं है उसका. No, sir, there is no active role. He can't advise, take decision, and on the basis of the decision of the party, sir, he make them appear to the board. तब तो मीडिएटर का कोई रोल ही नहीं रहा, वो तो खाली पार्टीज को एक जगह पे लाता है. Sir, mediation, sir, he makes an environment where both the parties sit together, and sir, the matrimonial disputes can be easily solved by way of mediation. वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे, मतलब मीडिएशन आप कह रहे हो कि सिर्फ मीडिएशन और कंसिलेटर दोनों अलग, काउंसलर अलग अलग चीज हो गया. Yes, आप कह sir. रहे हो काउंसलर का एक्टिव रोल रहता है, मीडिएटर खाली इन्वायरमेंट क्रिएट करता है. तो इन्वायरमेंट क्रिएट करने के बाद वो कुछ नहीं कहता, मतलब उसका रोल जॉइंट मीटिंग के प्रेसिडेंट की तरह है, खाली समन कर लो, बुला लो, लेकिन प्रिजाइड नहीं करोगे. Sir, he जॉइंट सेटिंग को presides कौन and प्रिजाइड करता है? sir, parliament. जॉइंट Sir, सेटिंग पार्लियामेंट में होती है, और कहाँ होती है, और कहीं होती है क्या? yeah, no, sir. The joint sitting of parliament is decided by the speaker of the Lok Sabha. स्पीकर होती है, और बुलाता कौन है उसको, समन कौन करता है? Sir, it is summoned by the honorable president. हाँ, तो वही हुआ ना कि मतलब प्रेसिडेंट का एक्टिव रोल नहीं है जॉइंट सेटिंग, सिर्फ समन करने का काम है. अब इसी Yes. चीज को मैं आप वाले पहले वाले आंसर में रख के देख लेता हूँ कि भाई मीडिएटर तो खाली इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, जैसे प्रेसिडेंट ने इन्वायरमेंट क्रिएट किया जॉइंट सेटिंग का, Yes, sir. और फिर बाकी का सारा रोल काउंसलर प्ले करेगा. चलो, सेक्शन 89 क्या है सीपीसी का? Sir, Section 89 deals with alternative dispute resolution. And sir, there are various modes being laid down. What are the modes? So first is sir arbitration. Second is conciliation. Third is sir lok adalats. And ये आपके एडीआरएम जैसा कोई कॉन्सेप्ट सीआरपीसी में भी है क्या? sir, in CRPC, sir, there is no such provision, sir. Sorry, sir, I'm unable to recollect any such provision in criminal procedure code. अच्छा, मेरिट बेस पर जब ट्रायल कंप्लीट होती है तो कहते हैं Yes, कि sir. फिर उसका सेम ऑफेंस पे वापस रीट्रायल हमें नहीं करना होता है, बार हो Yes, जाता sir. है. तो ये मेरिट बेस पर ट्रायल का मतलब क्या हुआ? Sir, merit basically means that it is not being dismissed on technical grounds, and the court has used its judicial mind regarding the
matter in dispute. And sir, when the court has applied its mind and adjudication of evidence is there, then sir, it amounts to merits. Adjudication of evidences. Yes, sir, adjudication. ये क्या होता है? Adjudication of evidences क्या होता है? So adjudication of evidences means application of judicial mind in relation to evidences for taking or rejecting the evidences. अच्छा, उसको adjudication बोलते हैं, adjudication of evidence बोलते हैं. Yes, sir. चलो ठीक है, फिर आगे adjudication of evidence हो गया, उसके बाद Sir, after hearing both the parties, a decision comes, and sir, that is a decision on merits. Whereas sir, dismissal on technical grounds are like, sir, there is res judicata, there is limitation bar, there are technical grounds. चलो, मतलब आपका मेरिट बेस पे जो ट्रायल कैसे कंप्लीट होती है आपको पूरी जानकारी है स्क्रीन लगा के. इस कॉन्सेप्ट के मेरिट बेस पर ट्रायल कंप्लीशन, इस कॉन्सेप्ट के सीआरपीसी में कौन कौन से एक्सेप्शन है? सवाल समझ में आया आपको? मैं रिपीट करूं? Sir, please repeat once. मेरिट बेस पर ट्रायल का कंप्लीशन ऑफ ट्रायल ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, आपने अभी एक्सप्लेन किया. Yes. इस प्रोसेस के एक्सेप्शन सीआरपीसी में है, वो कहाँ है? Sir, section 300 of Criminal Procedure Code. Sir, वो एक्सेप्शन है इसका. Yes, sir. मैं रीट्रायल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कंप्लीशन ऑफ ट्रायल ऑन मेरिट. इस कॉन्सेप्ट के एक्सेप्शन मतलब जहां पे मेरिट बेस पे ट्रायल कंप्लीट नहीं होती है, वो बताओ. Sir, section 125 of the Criminal Procedure Code. Sir, where maintenance is to be given, the merits are not to be seen. And sir, the very purpose of section 125 maintenance provisions. क्या 125 को मैं ट्रायल बोलूंगा क्या? 125 No, की sir. प्रोसीडिंग को ट्रायल कहते हैं. तो जब ट्रायल ही नहीं कहते तो उसको एक्सेप्शन में कैसे लेके आ रहे हो? नहीं, मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप बताएं. मैं तो जस्ट एक क्वेरी पूछा है आपसे. Yes, sir. Section 125 not at trial. श्योर है आप? Yes. चलो, तो कोशिश करो, वापस दोबारा कोशिश करो एक बार याद करने की कि भाई कंप्लीशन ऑफ ट्रायल ऑन मेरिट, ऐसे कहाँ मामले हैं जहां पर ट्रायल से पहले ही मामला क्लोज हो जाता है? Sir, if the person pleads guilty or if there is a plea bargaining. वेरी गुड. Yes. और बताएं. So in summoned trial under section 258, sir, I'm unable to recollect the exact section. Court may yes, sir. The court may close the trial or it may discharge the person. और Sir, I am unable to recollect other provisions, but plea bargaining is one of them. मैम प्लीज. विशाल जी, ये बताइए कि आर्टिकल 22 में कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं अरेस्टेड पर्सन को? Ma'am, Article 22 deals with the rights of arrested person, and ma'am, first right is ma'am, the person being arrested, he must be taken to the nearest magistrate as soon as possible, and he must not be detained for not more than 24 hours. And third is ma'am, a person must be told that what are the grounds of arrest and whether he has a right to bail, and he must be told about that. Further, ma'am, he has a right to choose a lawyer of his choice. ये बताइए कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है? Ma'am, court of record means is given under section Article 129, and ma'am, court of records are High Court and the Supreme Court. A court of record means the courts whose precedents can be हाई used कोर्ट as a. कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, ये कौन सा आर्टिकल कहता है? Sorry, ma'am, I am unable to recollect the article number of High Court, and Supreme Court is given under ma'am Article 129. What are the exceptions of hearsay evidence? Okay, ma'am. Ma'am, hearsay, there are many exceptions to the hearsay. The first one is ma'am res geste. Second is ma'am extrajudicial confession and extrajudicial admission. And third is ma'am the statement made by person who can't be called in court. Fourth is ma'am dying declaration. Ma'am, these are the exceptions to the hearsay rule. Okay. अब ये बताइए रिट्रैक्टेड कन्फेशन क्या होता है और उसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या होती है? Ma'am, retracted confession means
when a witness during the proceeding or during the trial, he is giving testimony and he resides from a statement which he has given earlier. Now, this is called retracted confession, and when evidentiary value of विटनेस ने कोई स्टेटमेंट दी है और उसने वो चेंज कर दी, उसे हम कन्फेशन बोलेंगे? when he changes the statement and said that that I had never confessed any statement, that the confession was made by me under the coercion or under force, and this statement was not voluntarily made. So क्या these are the अक्यूज की grounds. स्टेटमेंट को रिट्रैक्टेड कन्फेशन होगा या विटनेस की स्टेटमेंट को हम रिट्रैक्टेड कन्फेशन कहेंगे? Ma'am, I believe that both the statement of both persons will be covered. Okay. And ma'am, कन्फेशन की डेफिनेशन बता सकते हैं आप? Yes, ma'am. Confession means, ma'am, any statement given by a person which shows an inference as to direct guilt of that person, that he has committed that offense. तो अगर ये कन्फेशन का मीनिंग ये होता है, तो विटनेस की स्टेटमेंट अगर वो चेंज कर रहा है तो उसे हम रिट्रैक्टेड कन्फेशन कैसे कह सकते हैं? Yes, ma'am. Retracted confession only pertains to witness, accused. कोई केस लॉ पता है आपको? उसकी स्टेटमेंट को आगे कभी यूज किया जा सकता है? Yes, ma'am. No, recently, ma'am, in 2021, Ramesh versus State of Haryana, in Rakesh versus State of Haryana, evidentiary value of retracted confession is laid down, and it was laid down by Honorable Supreme Court that they merely being that it is retracted confession, it can't be thrown out, and if it is sufficiently corroborated on the rule of prudence, then it can be acted upon by the court. रूल ऑफ लॉ एंड रूल ऑफ प्रूडेंस क्या डिफरेंस होता है? And rule of law means any rule which is laid down in the legislation directly given, and rule of prudence means which an ordinary prudent man will consider in the same situation. ओके, लास्ट क्वेश्चन, इंटेंशन एंड मोटिव में दो डिफरेंसेस बता दीजिए. Okay, ma'am. Now, intention means the mental condition of a person, and intention plays a major role in the punishment portion in criminal law. Whereas the motive is starting of the intention, and motive is only relevant under Section 8, and it has no role to play in sentencing. थैंक यू. Okay. Thank you, ma'am. Yes, Mr. Vishal Thakur, we have done with your mock. Yes, sir. कुछ कमियां महसूस की आपने खुद के बारे में? Yes, sir. So now it's feedback time. सबसे पहले आप खुद अपना आप फीडबैक दीजिए. Sir, firstly, sir, I was little anxious to answer the questions. As sir, there are some questions, sir, which I know, which I can tell fluently. But sir, there are some questions which I don't know, so there is little buffering type. And second, sir, there is need of little brushing of laws, so that exact provision numbers can be. चलिए, let me start. You have various positive points. कई अच्छी बातें हैं आपके अंदर. बड़े हम्बल हो आप, है ना? आपका वॉइस कहीं पर भी मतलब ऐसा नहीं है कि नॉइजी हो, शाउटी हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना? दैट्स अ गुड पॉइंट ऑफ व्यू. वाकई में एक जज की क्वालिटी होती है मिस्टर वशा. वाकई में एक जज की क्वालिटी है जो होनी ही चाहिए, है ना? आपका टेम्परेचर को बैलेंस रखने का जो तरीका है, दैट्स अ गुड थिंग. कहीं पर भी आप है ना इस तरीके से नहीं है कि हाँ आप टेंशन में आ गए हो या फिर गुस्सा हो रखे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखा. बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कुछ बातें ऐसी हैं जो थोड़ी सी नाखुश करने लायक है. आपके पास वैसे ईमेल अगर आएगा, अगर आप ध्यान से इसको ऑब्जर्व करेंगे तो, जैसे मैं आता हूं कि शब्दों पर आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, एडजुडिकेशन ऑफ एविडेंस. एविडेंस का एडजुडिकेशन नहीं होता है. एडजुडिकेशन होता है डिस्प्यूट का, इश्यू का. एविडेंस का तो एप्रिशिएशन होता है. एविडेंस की तो मार्शलिंग होती है, एप्रिशिएशन एंड मार्शलिंग ऑफ एविडेंस, जो कि ट्रायल के दौरान होती है. और आप शब्द इस्तेमाल कर रहे थे एडजुडिकेशन. अगर आप सेक्शन 2 का क्लॉज 2 सीपीसी पढ़ेंगे तो डिक्री के लिए क्या वर्ड आता है ना, कि भाई फॉर्मल इस तरीके से मामले को एडजुडिकेशन करना है. एडजुडिकेट करना यानी कि जुडिकेट कर दिया, न्याय का निर्णय कर दिया. इसका हिंदी क्या आता है? न्याय निर्णयन, यानी कि आपने न्याय का निर्णय कर दिया. तो जब हम एविडेंस को ऑब्जर्व करते हैं तो क्या न्याय का निर्णय हो गया क्या? या फिर न्याय का निर्णय जजमेंट आएगा तब होगा, तो जजमेंट के पार्ट पे होता है. ओके, सुना आपने क्या कहा मैंने आपसे?
सेकंड सर वहां पर एक कॉल आ रही थी सर, वो एक बार फिर से रिपीट कर देंगे? कोई बात नहीं, ये वीडियो भी आपको वापस मिल जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये यहाँ पर कि एडजुडिकेशन का मतलब होता है न्याय निर्णय। न्याय का निर्णय एविडेंस स्टेज पर नहीं होता है, जजमेंट के स्टेज पर होता है। काउंसलर कौन होता है? कंसल्टेंसी देने वाला इंसान। और काउंसलर पे आप Yes. कभी भी चले जा सकते, कभी भी कोई पूछताछ करने जा सकते हो। एक हस्बैंड को डाइवोर्स लेना है, डाइवोर्स से पहले वो वकील से मिलने जा रहा है, तो वहां पर वकील जो है वो काउंसलर की स्टेज पर, काउंसलर कंसल्टेंसी दे रहा है वहां पे वो। और Yes. कंसिलिएटर वो एक अलग चीज है। कंसिलिएटर आपके फॉल करता है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 में। ओके। और मीडिएशन क्या होता है? Yes. मीडिएशन होता है कॉम्प्रोमाइज। तो कॉम्प्रोमाइज कराने वाला इंसान कभी भी बाइंडिंग इफेक्ट नहीं रखता है। दो लोगों में झगड़ा था, तीसरा व्यक्ति आया, दोनों को बोला कि चलो सेटलमेंट कर लो यार, कॉम्प्रोमाइज करवा दिया उसने एक तरीके से। तो Yes. मीडिएटर अलग होता है, आर्बिट्रेशन कंसिलिएटर अलग होता है, काउंसलर अलग होता है। लेकिन यार बेसिक शब्दों के अंदर आप उलझते हुए मेरे को वहां पे दिखाई दिए। थोड़ा सा शब्दों को सुनो। सिर्फ लिसनिंग एटीट्यूड आपका कम रहा है यहाँ पर। अगर आप ऑब्जर्व करते कि यार सर ने काउंसलर बोला है, कंसिलिएटर नहीं बोला है, तो शायद आप इस बात को बेटर वे में ऑब्जर्व कर पाते। सेक्शन 89 के अंदर आप जाएंगे तो आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एएनसी क्या है, आपके कानून से गवर्न होता है, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट से गवर्न होता है। आपके जो Yes. मीडिएशन की प्रोसीडिंग है वो कॉम्प्रोमाइज से गवर्न होती है। आपके जो जुडिशियल सेटलमेंट है वो कौन से कानून से? लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट से गवर्नेंस। 38. हाँ। अब एक जो मैं आपको बात अभी बताने वाला हूं वो है आपकी कॉन्सेप्चुअल एरर, जो तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हालांकि मैंने आपको बार बार मौका दिया, फाइनली आप रिकॉल कर भी पाए थे, लेकिन मेन इंटरव्यू के अंदर ऐसा नहीं होगा। आपसे मैंने पूछा कि कंप्लीशन ऑफ ट्रायल ऑन मेरिट, इसका मतलब है सारे फॉर्मल स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने ट्रायल को कंक्लूड किया है ना? Yes. आपने कॉग्निजेंस भी लिया, आपने चार्ज फ्रेमिंग भी की, उससे पहले आपने प्रोसेस भी इश्यू किया, उसके बाद में आपने डेट ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस रखा, फिर प्रोसिक्यूशन के एविडेंस, फिर डिफेंस के एविडेंस, फिर फाइनल आर्ग्यूमेंट का स्टेज और फाइनल कंक्लूजन, उसके बाद में प्रीवियस कन्विक्शन का हियरिंग। सब कुछ कंप्लीट हुआ। उसको बोलते हैं मेरिट बेस पर मामले को कंक्लूड है जो करना। इसके एक्सेप्शन लास्ट में जाते जाते आपने बता दिए, दैट्स अ गुड थिंग। जैसे कि आपके प्ली बार्गेनिंग का मामला है, उसमें कभी ट्रायल कंप्लीट नहीं होती है, दोनों के बीच में MSD म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन हो जाता है। कंपाउंडिंग ट्रायल कंप्लीट नहीं होती है। विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन ट्रायल कंप्लीट नहीं होती है। विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट ट्रायल कंप्लीट नहीं होती है। प्ली बार्गेनिंग ट्रायल कंप्लीट नहीं होता है। डिस्चार्ज प्रोसीडिंग ट्रायल कंप्लीट नहीं होती है। एक्विटल अंडर सेक्शन 232 बाय सेशन कोड ट्रायल कंप्लीट नहीं होती है। तो ये क्या, ये कॉन्सेप्चुअल लिंकिंग वाले प्रोविजन है। हम लोग सीधा सीधा तो बेरेट को पढ़ ही लेते हैं, लेकिन कई बार ये जो चीजें होती है ना, जहां पे हमारा कॉन्सेप्ट क्रॉस चेक होता है, वहां पर उन चीजों को ऑब्जर्व नहीं करते। ठीक है। और जबकि Yes. आपको पता था, बताया किसने अल्टीमेटली बताया? आंसर बताया विशाल ठाकुर ने। मतलब उसके दिमाग में चीजें तो थी, लेकिन उसने इससे पहले कभी इस तरीके से लिंक ही नहीं किया कि भाई ये वाला पॉइंट हम यहाँ से लिंकिंग भी करके ऑब्जर्व कर सकते हैं, और वहीं पर थोड़ा सा ये क्या हमारी मेमोरी को शार्प करती है। इसी बहाने हम अलग अलग चीजों को याद रख पाते हैं। तो इसको मैं आपकी थोड़ी सी इनिशियल स्टेज पे कॉन्सेप्चुअल एरर कहूंगा। ठीक है। यानी कि Yes, प्रोविजन कहाँ पे एप्लीकेबल होता है। आपका मॉक मेन इंटरव्यू कब है आपका? 23rd. 23rd है, तो 10-12 दिन है आपके पास में। तो विशाल Yes, sir. ठाकुर जी, मेरी आपसे बड़ी सख्त सलाह है, सख्त वाली सलाह, स्ट्रिक्ट सजेशन है, और वो ये है कि आपको 10 से 12 दिनों में बढ़िया से मेडिटेशन करना है। आंखें खोल के कम पढ़ना, लेकिन आंखें बंद करके ज्यादा पढ़ना। ओके। ताकि आप मेमोरी के अंदर चीजों को क्या कर सको, रिकॉल कर सको। इस कैपेसिटी को बढ़ाना है। जरूरत पड़े, आवश्यकता लगे तो इसके लिए लिंकिंग चार्ट्स हो, या लिंकिंग ऐप में से आपको सॉफ्ट कॉपी वर्जन दे रखा है लिंकिंग चार्ट्स का, उसको यूज करो, है ना? सर पहले देखा था। पहले देखा तो अब कौन देखेगा? उसको रिकॉल करो फटाफट। रिकॉल करने से एक आत्मविश्वास आता है कि भाई चलो एक बार मेरा रिवीजन हो गया। एक्सटर्नल तकनीक का इस्तेमाल करो भाई, बराबर। तो ये चीजें होना चाहिए। बाकी आप जैसे रिट्रैक्टेड कन्फेशन और हॉस्टाइल विटनेस के कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन कर रहे हो, दैट विल नॉट एक्सेप्टेबल। मैम ने आपसे एक सवाल पूछा था, कन्फेशन एक्यूज देता है, बात विटनेस की चल रही थी, विटनेस तो हॉस्टाइल हो गया। अगर वो अपने जवान से पलट गया, अगर वो पार्टी जिस पार्टी ने बुलाया उसी के खिलाफ एविडेंस दे रहा है, टेस्टिमोनी दे रहा है, दैट बिकम हॉस्टाइल विटनेस अंडर सेक्शन 154 इंडियन एविडेंस एक्ट। ये भी आपको पता था, बट वही है कि रिकॉल नहीं कर पाए। घुमा फिरा के सुई कहां पे अटक रही है? रिकॉलिंग पे। और रिकॉलिंग क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हम कॉन्सेप्चुअल लिंकिंग कभी करते ही नहीं थे। अब करो। अभी भी हमारे पास 10 दिन है, और मैं आपको बता रहा हूं कि विशाल ठाकुर एक ऐसा कैंडिडेट है, अगर वो ठान लेना तो इन 10 दिनों के अंदर इस चीज को डन कर सकता है। यस और नो? यस सर। प्रॉमिस रहेगा आपका ये?
Yes, sir. अगले 10 दिन जान लगा लो, ये समय वापस नहीं आने वाला है. ओके Yes, sir. बाकी अदरवाइज यू हैव अ गुड एप्लीकेशन एंड और बाकी तो आपकी कई सारी खूबियां हैं डेफिनेटली. आपका जो प्रोफेशनल कंडक्ट है, जो आपका कर्टसी बिहेवियर है, दैट्स रियली अप्रिशिएबल. और वाकई में एक जज के अंदर ये चीज होनी चाहिए, जैसा मैंने पहले बताया. एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड सर, मैम? ओके देन, परफेक्टली. विशाल Sir, yes, sir, I have a question. Sir, regarding the dress code, sir, we have to wear only black and advocate's dress, or only can we go for other code? नो ब्लैक कोट. जाने को तो जा सकते हो, कोई ऐसा मना नहीं है. Yes, sir. काला कोट होता है. कैरी दैट. Yes. ठीक है. उससे Yes. क्या होता है, देखो मैं आपको एक बात, एक साइकोलॉजी की बात होती है. आप मान लीजिए ब्लू कोट पहन के चले गए, वहां पर आपने Yes. देखा कि सारे कैंडिडेट्स ब्लैक कोट पहन के बैठे हैं. अब Yes, आपका जो ये मानवीय दिमाग है ना, वो चिंता पालने लग जाएगा. अरे यार, सब लोग काला ब्लैक कोट पहन के आए, मैं ही ब्लू पहन के आया हूँ. तो वो चीज क्या करेगी, एक टेंशन क्रिएट करेगी. तो ऐसा मौका क्यों देना? ब्लैक कोट नहीं है क्या आपके पास? Yes. फिर क्या दिक्कत है? Sir, पंडित जी earlier बोले थे, sir, earlier I have appeared in Haryana interview last year. सर उसके लिए मैंने ब्लू कोट, आपने ही मेरा इंटरव्यू लिया था उस टाइम, तो सर मैंने उस टाइम ब्लू कोट लिया था. Yes, sir. भाग्य देखो भाई, अगर तुम हमारे पंडित जी कह रहे तो बात अलग है, वो उसमें मैं मना नहीं करूंगा. ऐसा कोई इशू नहीं है सर. और एक ऐसे कई बार सर हिंदी में क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यूअर्स, तो सर हमें हिंदी में स्विच करना चाहिए कि हमें इंग्लिश में ही मतलब करना देखो, यहाँ पर अपने कंफर्ट जोन को साथ तो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. अगर हिंदी में सवाल पूछा है तो परमिशन लीजिए कि सर अगर आप अलाउ करें तो इस चीज को मैं अंग्रेजी भाषा में बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊंगा. तो बोर्ड कहता है यस प्रोसीड, तो फिर तो अंग्रेजी बोलो. ठीक है. सर. वैसे सर, बोर्ड इतना स्टबर्न होता नहीं है कि कैंडिडेट sir. कोई परमिशन मांगे और कैंडिडेट को परमिशन ना दे. इसलिए बोलने के मामले में अपने कंफर्ट जोन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना. अगर आप हिंदी में अच्छा बोल पाते तो हिंदी में बात करें, इंग्लिश में Yes, अच्छा sir. बोल पाते तो इंग्लिश में बात करें. और अगर मिक्सअप भी चलता है तो सिर्फ तकनीकी शब्दों को मिक्सअप में इस्तेमाल करना, बाकी हिंदी इंग्लिश चलने दें. सर समटाइम्स सर जो हमारे पर्सनल क्वेश्चन होते हैं सर, जजेस जो होते हैं, जो इंटरव्यूअर्स, वो थोड़े हिंदी में बोलते हैं कि आपने ऐसा किया है, तो सर वो वी कैन स्पीक इन हिंदी ऑन दोज क्वेश्चंस. देखो, आपके पर्सनल क्वेश्चन पूछने का उनका मेन उद्देश्य आपका टेम्पो चेक करना है यहाँ का, कि तुम किसी पॉइंट पे, कोई तुम्हारा कमजोर पॉइंट तो नहीं, वहां पे तुम उलझ तो नहीं जा रहे हो. Yes, sir. पर्सनल क्वेश्चन वही कह रहे हो जो आपकी व्यक्तिगत जिंदगी से जुड़े हुए, उसी की Yes, बात. sir. Have you practiced? Have you gone to court like that? हाँ, इसके जवाब तैयार करो. आपकी रियलिटी, सपोज करो आप कोर्ट नहीं जाते हो, तो आपको Yes. एक आंसर तैयार करना है कि कोर्ट क्यों नहीं गए आप. Yes. इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो बंदा कोर्ट जाता है उसका एक प्लस पॉइंट होता है. तो आप नहीं गए हो, तो अब आपके इस नेगेटिव पॉइंट को आप कैसे प्लस में कन्वर्ट करोगे? क्या बोलोगे बताओ? Sir, I was preparing for my judicial service examination, and sir, I had channelized my whole energy into crack this examination. And sir, for that purpose, sir, I couldn't visit the court. ठीक है, 2 लाइन इसमें मैं और एड ऑन कर लेता हूँ यहाँ पे कि सर Yes. इन टुडेज एरा the competition of judicial examination is not only confined to state level. Actually, it is a national level competition where the candidates Yes. from the different part of India are participating. So being a human nature, so somewhere I have also fear that if I have not prepared well for this examination, then might be I will not able to get through this examination. So Yes. my sole goal was definitely was judiciary. So my whole time was dedicated to the preparation and revision of the classes, and that's the reason that I could not manage my time. I could not manage my time to attend the court proceeding. Yes, sir. मेरे पास टाइम नहीं था कोर्ट जाने के लिए, ऐसा तो बिल्कुल मत बोलना. आई कुड नॉट एबल टू मैनेज माई टाइम. ठीक है, Yes. करो फिर, ताकि Thank उसको you. लगे कि हाँ भाई बंदा डेडिकेटेड था, कोई बात नहीं, जुडिशरी की तैयारी कर रहा है, इट्स ओके. Yes. ठीक है, Yes. sir. चलो. आई होप आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा होगा, आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा. ऑब्जर्व करना है इसको. इस Yes, sir. वीडियो को 2-3 बार देखना. आपके पास शाम तक है जो आ जाएगी. ठीक है, Yes, sir. रिटर्न फीडबैक आपके पास आ जाएगा, और ओवरऑल आपका कैसा फीडबैक रहा है, हो सके तो ग्रुप में जरूर मेंशन करना. ठीक है, चलिए, Thank you, sir. विश यू ऑल द बेस्ट.